हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन that follow by selecting the correct or most appropriate option। देखिए यहाँ से पैसेज है। Buddha's method was one of psychological analysis, and again it is surprising to find how deep was his insight into his latest of modern sciences. A man's life was considered and examined without any reference to a permanent self, for even if such a self exists, it is beyond our comprehension. The mind was looked upon as a part of the body, a composite of mental forces. The individual thus becomes a bundle of mental states. The self is just a stream of ideas. All that we are is the result of what we have thought. There is an emphasis on the pain and suffering of life। देखिए, एंड दी फोर नोवेल truths which Buddha uh, enunciated deal with the suffering, its cause, the possibility of ending it, and the way to do it. Speaking to his uh, he is he is reported to have said, and while while experienced the sorrow, thoughts long as more tears have followed from you and have been shed by you, while strayed and wandered on this देखिए ऑन दिस जो है ऑन दिस pilgrimage of life, and sorrowed and wept, because that was your portion, which is a word, and that which loved was not your portion. Then all the water which is in the four great oceans, Buddha told his disciples what he thought they could understand and live up to. His teaching was not meant to be a full explanation of everything, a complete of all that is. Once it is said, he looked some dry lips in his hand, asked his favorite disciple Anand to tell him whether there were any other leaves besides those in his hand। फिर देखिए, आनंद replied, the leaves of autumn are falling on all sides, and there are more of them can be can be numbered. Then said the Buddha, in like manner I have given you a handful of truth, but besides these are many thousands of other truths, more than can be numbered। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्धा's method of understanding the self can be described as बी ऑप्शन। क्या होगा? साइंटिफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फिर है यहाँ पे कि आफ्टर द emergence of a new scientific approach, the self came to be considered as B option a stream of ideas. क्या होगा? A stream of ideas. Next. तीसरा है कि which of the following is not one of the four noble truths as enunciated by the Buddha. तो तीन का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, दी सफरिंग हैज अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुद्धास टीचिंग इज। तो यहाँ पे होने वाला आपको सी ऑप्शन, यानी यहाँ पर हो जाएगा रिलीजेशन विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, रिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन जो है इलस्ट्रेशन, यानी थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एवॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो होगा एवॉर्ड मतलब होता है ABHORRED। एवॉर्ड मतलब होता है घृणा किया। क्या होता है? घृणा किया। एवॉर्ड मतलब होता है घृणा किया। ठीक है, या नफरत किया। घृणा, नफरत। ठीक है, घृणा या फिर नफरत। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा लव्ड, यानी क्या हो जाएगा? लव्ड यानी प्यार या प्रेम किया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एवॉर्ड का हो जाएगा लव्ड। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे यदि देखें तो फ्लैटरेट FLATTERED, इसका मतलब होता है मिथ्या। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मिथ्या प्रशंसा किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है इंटरटेंट मतलब होता है मनोरंजित। ठीक है, क्या होता है? मनोरंजित। इंटरटेंट मतलब होता है मनोरंजित। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है एडमोनिस्ट। ठीक है, ADMONISHED। एडमोनिस्ट मतलब होता है डांटा या फिर फटकारा। ठीक है, डांटा या फटकारा। एडमोनिस्ट मतलब डांटा, फटकारा। नेक्स्ट 6 देखिए। 6 है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Person who is not an expert in the field of art or music। तो 6 का हो जाएगा यहाँ पे आपको ए ऑप्शन। ठीक है, पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, यहाँ पे होगा अमेचर। तो देखिए अमेचर मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखुआ। ठीक है, नौसिखुआ। ठीक है, डेट मीन्स पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन आर्ट और म्यूजिक। उसके बाद देखिए PATRON, इसका अर्थ होता है संरक्षक। ठीक है, क्या होता है? संरक्षक। PATRON, इसका अर्थ होता है संरक्षण। उसके बाद देखिए एसेंट्रिक मतलब होता है उन्मादी। एसेंट्रिक मतलब होता है उन्मादी। ठीक है, एसेंट्रिक डेट मीन्स उन्मादी। नेक्स्ट 7 है select the most appropriate option to fill in the blank. He ... a clever plan to safeguard his secret। तो 7 में देखिए 7 का होने वाला है बी ऑप्शन, डिवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ही डिवाइज्ड अ क्लियर पेन, कोई योजना बनाने के लिए। ठीक है, डिवाइज्ड। ठीक है, डिवाइज या EVOLVD। ठीक है, में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है विच इज नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। तो 8 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, कार। तो देखिए कार कैन नॉट बी अवेलेबल इन बेडरूम। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए कहता नीचे दिए गए पद को पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों के जो है उपयुक्त उत्तर चुने विकल्पों में से। नेक्स्ट देखिए,
देखिए यहाँ पे है कि मुँह को कहाँ ढूंढे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोई हुई तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस। देखिए क्वेश्चन है कि मैं तो तेरे पास में, शब्द में मैं शब्द किसके लिए है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 9 का सी ऑप्शन। ठीक है, ईश्वर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, तो देखिए मैं तो तेरे पास में, ठीक है, इसमें मैं का जो है प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता कवि के अनुसार ईश्वर को जो धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। तो 10 का होगा ए ऑप्शन, यानी प्रत्येक प्राणी में। ठीक है, तो 10 का क्या होगा, ए ऑप्शन। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जाता क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। 11 है कि कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है। 11 का सी ऑप्शन, तो समर्पित भक्तों को। कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत जो है, तुरंत केवल समर्पित भक्त को ही मिल सकता है क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि ढूंढे शब्द है, तो 12 का बी क्रिया। तो ढूंढे शब्द जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कहता सब श्वासों की श्वास में कहाँ से, तो 13 का देखिए, 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ईश्वर सर्वव्यापी है। ठीक है, सब श्वासों की श्वास में कहाँ से है, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। नेक्स्ट फिर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे खाली स्थान के चक्रव्यूह में फंस गई। 14 का क्या होने वाला है, बी ऑप्शन, नियति। तो वह नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। ठीक है, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। नेक्स्ट है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 15 का ए ऑप्शन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, उपरोक्त वाक्य में थोड़ी सी में परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो थोड़ी सी में क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। 16 का सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, उपरोक्त वाक्य में अच्छे गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा के गुण धर्म को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के जिस प्रकार में रंग, गुण, आकार, ठीक है, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला, भूखा, मीठा, चौड़ा आदि। 17 है कि निम्नलिखित का ध्यान को पढ़कर क्या दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन जो है प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यह देखने का अर्थ जानना ही है। आत्म क्या है, ठीक है, आत्मज्ञान क्या है, यह कैसे और जो है यह कैसे और किसे होता है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को जो आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को जो अवश्य प्राप्त कर सकता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवचनों में जीते हैं। हम जो है यथार्थ में होते कुछ और
तथा दिखाई देते हैं कुछ और। ठीक है, अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा जो उनके औचित्य की को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि सत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ठीक है, ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह जो अधिक जो कुशलता से जो झूठ बोल सके। आत्म दर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। ठीक है, दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्म दर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। देखिए क्वेश्चन है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है। यह देखना जो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? 17 का सी ऑप्शन, जानना। ठीक है, तो दर्शन का तात्पर्य देखना है, यह देखना का अर्थ है जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि आत्मदर्शन है ए ऑप्शन, अपने गुण दोष को स्वीकारना। ठीक है, आत्मदर्शन अपने गुण दोष स्वीकारना। फिर है कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, बी ऑप्शन, उसे स्वीकार करने से। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे स्वीकार करने से। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। अतः इंसान अपने दुर्गुण को स्वीकार कर उसे दूर पाया जा सकता है। सॉरी 20 नंबर देखिए, कहता जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक, सी ऑप्शन, परिवेश। तो जीवन दर्शन का जो सच्चा शिक्षक है ये परिवेश है। ठीक है, इंसान का जो आत्मदर्शन उसे आंतरिक विकास की ओर जो अग्रसर करता है। ठीक है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश ही है। अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है? 21 का ए, अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। फिर दिए गए शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तन्मय, तो देखिए तन्मय का होगा सी ऑप्शन, तत्जोरमय, तन्मय, सी ऑप्शन। ठीक है, तो तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत्जोरमय। 23 के किस शब्द में संधि और समास दोनों है? तो 23 का होगा बी ऑप्शन, हिमालय। ठीक है, हिमालय ऐसा शब्द है जो संधि और समास दोनों है। ठीक है, हिमालय दीर्घ संधि और तत्पुरुष समास है। 24 नंबर कहता कि कौन सा शब्द जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? 24 का सी ऑप्शन, खान पान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है खान पान द्वंद्व समास है, शेष सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, खान पान जो है द्वंद्व समास है, शेष सभी तत्पुरुष, सॉरी देखिए सी ऑप्शन। तो यहाँ पे खान पान द्वंद्व समास है, शेष सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट पर है कि उद्देश्य का समानार्थी क्या है? 25 का बी ऑप्शन, लक्ष्य। तो देखिए उद्देश्य का समानार्थी जो है लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रयोजन, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? 26 का बी ऑप्शन, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? उद्देश्य। 26 का बी, प्रयोजन का तात्पर्य उद्देश्य होता है। 27 समझ शब्द का तत्सम है। 27 का सी, समबुद्धि। समझ का तत्सम जो है समबुद्धि है। समझ का जो है समझ का तत्सम समबुद्धि है। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है। नेक्स्ट देखिए, कहता जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजारे लगे बढ़े अंधेरे होई। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे 28 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, श्लेष अलंकार। ठीक है, दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए,
29 है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गुलर का फूल, बी ऑप्शन, दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। इस किस रस का जो है किस रस का उदाहरण है? तो ये जो है आपको इसका हो जाएगा बी, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है। ठीक है, तो एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट, यानी वीरस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।